ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਦੀਪਤਾਈ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਪੜਾਂਗੇ ਲੂਕਾ 21 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦਾ 34 ਅਤੇ 35 ਵਚਨ। ਖਬਰਦਾਰ ਰਹੋ, ਭਈ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਕਿਤੇ ਭਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਫਾਹੀ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ, ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅੰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਬਰਦਾਰ ਰਹੋ ਬਈ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਮਤਵਾਲੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਕਿਤੇ ਭਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਫਾਹੀ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆ ਪਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਬਚ ਸਕੋ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੀਏ, ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਉન્નતિ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਦੌਲਤਮੰਦ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਲਵਾਰਿਸ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਰਹੇਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਮਰਨਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਬਚ ਸਕੋ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। 3 ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 3 ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 3 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
क्योंकि असी एक इतिहासिक समय दे विचों दी गुजर रहे हाँ। इस संसार दे विच 2 विश्व युद्ध होए, पर उस समय भी इस तरह का संकट नहीं इस दुनिया दे विच आया जिस प्रकार का संकट अज इस दुनिया के उपर आया है, जिस प्रकार के संकट का अज संसार सामना कर रहा है। नूह दे जल परलो तो बाद पहली बारी इदा हो रहा है कि पूरा संसार पूरी तरह थम चुका है। पूरी तरह संसार की रफ्तार जड़ी है वो थम चुकी है। हर पासे बेचैनी है, चिंतावां हन, कई तरह के बोझ है, परिवार दे, कारोबार दे, मौत दे, जीवन दे, आने वाले दिनों दे कई तरह के बोझ अज इंसान को दुखी कर रहे हैं। अगर मैं कहा तो हर तरफ अंत तक मचिया होया है। हर कोई डरिया होया है कि लोग आने वाले दिनों अंदर की करेंगे। हजारों लोगों दी नौकरियां चली जा रही हैं, हजारों लोगों के कारोबार बंद हो रहे हैं, बहुत सारे लोग कर्जे के कारण दुखी हुए हैं, बहुत सारे लोग अपना काम खो चुके हैं, नफे की जगह नुकसान हो रहा है। आने वाले दिनों के अंदर सामने गरीबी और भुखमरी नजर आ रही है। लोग ये सोच रहे हैं कि कुछ हफ्ते या महीनों के बाद की खावांगे, की पहनांगे। विदेश विच बैठे हुए लोग अपने देश में वापस नहीं आ रहे, फ्लाइट बंद हो रही हैं। इदां दी चिंतावां की कर रही हैं, लगातार मनुख नूं सता रही हैं। विदेश विच बैठे हुए लोग इस गल नूं लैके दुखी हैं कि शायद पता नहीं असी अपने देश जावांगे या नहीं, शायद महामारी की लपेट विच ना आ जाइए, किते साडी भी गिनती उन्हां लोगां दे विच ना आ जाए। हर रोज लखां करोड़ों लोग मर चुके हैं इस महामारी दे नाल, पर असीं अपने जीवन ते ध्यान करना है। असीं की करना है? हर तरफ लोग मर रहे हैं, लोग बीमारियां दे नाल ग्रस्त हो रहे हैं, ते नाल ही नाल होर भी खतरनाक बीमारियां आउंदे लोगां नूं संकेत मिल रहे हैं। विज्ञानिक लोगां नूं, डॉक्टर लोगां नूं होर भी भयानक आउण वाले दिनां दे अंदर बीमारियां ते कष्ट ते घटनावां दे लगातार संकेत मिल रहे हैं। इन्हां सारियां गल्लां नूं लैके सारी धरती दे पूरी तरह अंत तक मचिया होया है। अगर असीं ये भी इन्हां सारियां गल्लां नूं ध्यान विच रखदे होए ना जागे, अपने जीवन के प्रति चिंतित ना होए, अगर असीं भी इन्हां सारियां गल्लां दे विच फस गए तो याद रखना असीं बहुत कुछ अपने जीवन चों गवा देवांगे। जवान बच्चे अलग दुखी हैं कि साडी एजुकेशन पढ़ाई दा की होवेगा। कई नौजवान अपने विआहता जीवन की साडी शादी हो पावेगी कि नहीं, इस प्रकार दी चिंतावां दे नाल लगातार संसार जूझ रहा है। आओ असीं हुण देखांगे कि असीं की करिए। असीं जो मसीह लोग हाँ, जड़े परमेश्वर दे कहलाए जाने वाले लोग हाँ, उसदे राज दा हिस्सा हाँ, उसदे परिवार बनन दे लई अलग कीते होए हाँ। परमेश्वर ने सानू जो संसार दे विचों मुल लैके अपने बेशकीमती लहू दे नाल खरीद के संसार तो अलग कीता है, वो साडे जीवन तो की मंग कर रहा है। इन्हां सारियां गल्लां नूं दसदे होए इस गल ते ध्यान करना है। अते जड़े लोग अजे तक परमेश्वर नूं जान नहीं पाए, जड़े ओदी योजना दे विच नहीं आए, उन्होंने की करना है? वैसे तो काफी समा निकल चुका है मसीहां दे लई लापरवाही वाला जीवन गुजारदे हुए, मन मर्जी करदे हुए, अपनी इच्छा नूं करदे हुए, अपना जीवन संसार दे कमां नूं, अपने जीवन का बहुता समा अपने परिवार नूं, संसार नूं दिंदे हुए बहुत समा लंघ चुका है। पर असी समय दे बिल्कुल अखीर दे विच आ पहुंचे अते की करना है? सानू ध्यान करन दी लोड़ है, क्योंकि इस धरती ते जो कुछ भी हो रहा सब देख रहे हैं असी अपनी अखां दे नाल।
ये सब साडे इर्द गिर्द हो रहा है, साडे चार चुफेरे हो रहा है। असी इस तरह सोचते हाँ कि शायद परमेश्वर ने सानू इसे लिए बनाया है कि असी दुनिया दे विच की करिए, उन्नति पाइए, दुनिया दे विच सानू तरह तरह दी बरकतां मिल जान। शायद परमेश्वर ने सानू इसलिए चुनिया ते बनाया है। पढ़े लिखे लोग सोचते शायद परमेश्वर ने सानू दुनिया च इस करके भेजा कि असी अच्छे डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, अच्छे ऑफिसर बन जाइए, सानू चंगी नौकरी जॉब मिल जाए। साडियां ख्वाहिशां ते साडी चाहत केवल दुनिया दे विच इन्नी की है, साडे को पैसा आ जाए, साडी जान पहचान बन जाए, साडी उत्ते तक पहुंच बन जाए, साडा बैंक बैलेंस होवे, साडे को चंगा घर होवे, चंगी गड्डी, चंगा सुख सहूलतां होण। मनुख अज दुनिया विच रह के ये सारियां चीजां सोच रहा है। परमेश्वर दे गल करन दा एक स्टाइल हुंदा है। परमेश्वर वैसे सदियां तो खामोश है, वो कदे भी इस प्रकार गल नहीं करता जिवें तुसीं ते मैं गल कर रहे हैं। परमेश्वर दा अपना सभ्यता, अपना कल्चर है अते ओदे गल करन दा संसार दे नाल स्टाइल एक अनोखा है, क्योंकि वो एक ही इंसान नाल गल नहीं कर रहा, वो अज वर्तमान विच पाई जान वाली लगभग 750 करोड़ लोगों दे नाल गल कर रहा है। अज संसार दी जिहड़ी पॉपुलेशन, जिहड़ी जनसंख्या है, वो लगभग 750 करोड़ दे लागे है। हुण एक परमेश्वर ने इन्हें लोगों दे नाल गल करनी है तो वो परमेश्वर का जो स्टाइल है गल करन दा, वो संसार नूं कई तरह दी चेतावनियां दे के, वो परमेश्वर प्रकृति दे द्वारा, वो कुदरत दे द्वारा, कुदरत दे नियमां दे द्वारा की करदा है, लोगों दे नाल गल करदा है। अगर परमेश्वर ने दुनिया नूं सुधारना है तो वो की करदा है, दुनिया के अंदर कई तरह दियां कुदरती घटनावां नूं लैके आउंदा है ताकि मनुख समझे, क्योंकि मनुख दी औकात नहीं कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ डायरेक्टली गल कर सके। उसकी आवाज बाले पानियां दी कूक जही है, उसका प्रकाश जिसने सूरज नूं बनाया मनुख अपनी अखां नाल देख नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर दा की है एक स्टाइल है मनुख जाति नूं सुधारन दे लई, उस दे नाल गल करन दे लई। इसलिए असी ये ना सोचिए कि शायद साडा धरती उत्ते आउण दा केवल इन्ना की मकसद है कि असी पढ़ लिख जाइए, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर या होर कोई इस तरह का की बन जाइए, ऑफिसर लाइन दे विच आ जाइए। पर परमेश्वर साडे जीवन तो कुछ होर मांग कर रहा है। वो साडे लई एक योजना दे रहा है। अगर असी इदा सोचांगे तो सानू ये सोच बदलन की लोड़ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सृष्टि, ये पूरी कायनात परमेश्वर ने बनाई, किसी मनुख ने नहीं, पर वो परमेश्वर ने बनाई किस दे लई? अपने लई, अपनी खुशी नूं पूरा करन दे लई। ये दुनिया नूं बनाया है तो परमेश्वर ने अपने लिए बनाया, अपने सुपन, अपनी खुशी नूं पूरा करन दे लई, अपनी इच्छा नूं पूरा करन दे लई। उसने इसलिए नहीं बनाई कि असी कुछ बन जाइए, सानू कोई उन्नति मिल जाए, इस करके नहीं। परमेश्वर ने इंसान नू, मनुख जाति नू अपने लिए बनाया, अपनी खुशी, अपनी इच्छा, अपने स्वप्न नू पूरा करन दे लई। वो परमेश्वर चाहता है कि मैं मनुखों दे नाल वास करा, मनुखों दे नाल संगति करा, मनुखों दे नाल डेरा करा। पर कारण की है? मनुख नूं मिली हुई आजाद इच्छा दा मनुख अज नजायज फायदा उठा रहा है। अगर परमेश्वर ने सानू अपनी आजाद इच्छा ना दिती हुंदी, अगर परमेश्वर सानू रोबोट की तरह बना देंदा तो शायद असी परमेश्वर की मर्जी करते। अगर परमेश्वर ने सानू आज साडे जीवना दे अंदर आजाद इच्छा दा दान ना दिता हुंदा तो असी अपनी मर्जी दे नाल कुछ भी नहीं कर सकते सा। अपनी मर्जी दे नाल खा नहीं सी सकते, अपनी मर्जी दे अपनी पसंद दा पहन नहीं सी सकते, अपनी पसंद दा की कर सकते, कुछ इस्तेमाल नहीं सी कर सकते। पर जिहड़ी परमेश्वर ने तुहानू ते मैनू आजाद इच्छा दिती है, उसदा अज मनुख जाति, तुसी अते मैं, मसीह लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अपनी मर्जी का जीवन जिवें दिल करता है पाप कर रहे हैं, जिद्दां दा जी करता है बुराई कर रहे हैं।
जी करता है तब प्रार्थना कर लेंदे हाँ, जी करता है ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆਜ਼ਾਦ ਇੱਛਾ ਦੇ ਦਾਨ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ? ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ कि जो असी चाहते केवल वही होवेगा, जो संसार चाहता है वही होवेगा। जिस परमेश्वर ने संसार नू बनाया, दुनिया नू बनाया, वो जो चाहेगा वही होके रहेगा। वो जिदा चाहेगा, मनुख जो मर्जी कर लवे, जिन्ना मर्जी जोर लगा लवे, परमेश्वर हुण अपनी कमर नू बन चुका है अते वो फैसला कर चुका है कि जो मैं करांगा केवल वही होवेगा। मनुख लाचार होवेगा, दुखी होवेगा ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਔਕਾਤ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾ ਕੇ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾ ਕੇ, संसार ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। बेशक आल दुआले चार चुफेरे सारा कुछ हो रहा है, असी अपने इन्हां सारियां घटनावां दे मेन सेंटर पॉइंट नूं देखना है, विचकारले हिस्से नूं देखना है जिथे साडा परमेश्वर अपनी योजना नूं लैके खड़ा है। अते वो परमेश्वर हर हाल विच अपने हित अते अपनी इच्छा नूं पूरा करेगा, जो मर्जी हो जाए। परमेश्वर ने जदों दुनिया में नहीं सी, कुछ भी नहीं सी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुख जाति, सूरज चंद्रमा सितारे कुछ भी नहीं सी, तद परमेश्वर ने अपने मन दे विच सोचा कि मैं अपने लिए एक बड़ी खूबसूरत दुनिया बनावांगा, मैं अपनी शक्ल, अपने स्वरूप दे इंसान नूं बनावांगा अते मैं उसनूं अपने नाल संगति करन दे लई की करांगा, तैयार करांगा। परमेश्वर की एक योजना सी, पर इस योजना नूं नजर लग गई शैतान दी। हुण साडे कोल समा नहीं है कि शैतान कित्थों आया, किवें बनिया। परमेश्वर ने चाहा तो इस विषय ते असीं किसी होर दिन प्रचार करांगे, पर जिहड़ा विषय सानूं परमेश्वर ने अज दित्ता है असीं उस ते ध्यान करांगे। शैतान ने, परमेश्वर दा ते मनुख दे वैरी ने की कीता? परमेश्वर दी योजना नूं भंग कर दित्ता। और परमेश्वर हुण इस संसार नूं बहुत जल्दी शुरुआत अंदर अपनी योजना पूरी नहीं कर पाया और इस संसार के अखीर दे विच अपनी योजना पूरी करन जा रहा है। परमेश्वर जो चाहता है वो पूरा करन जा रहा है, चाहे उस दे लई संसार नूं किन्ना ही नुकसान क्यों ना उठाना पवे, वो जो चाहता है वही हर हाल विच होवेगा। इसलिए सानू तैयार हो जाना चाहिए है परमेश्वर की इच्छा करन दे लई, क्योंकि जो चाहता है असी वो कर पाइए। क्योंकि असी अगर परमेश्वर सब कुछ परमेश्वर अपने लिए बनाया है तो फिर वही रहेगा जो वो चाहता है। साडा जीवन, साडियां गल्लां परमेश्वर दे उद्देश्य दे नाल मेल खाणियां जरूरी हन। केवल वो गल्लां ही रहणगियां जिहड़ियां उस दे हित अते उस दी इच्छा दी सही दिशा दी वल जाण वालियां हन। बाकी सब खत्म हो जाणगियां, बाकी सब वो कुछ जांदा रहेगा। केवल और केवल जिहड़ियां चीज़ां, जिहड़े लोग
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होणगे, उसके मन के अनुसार होणगे। केवल इदां दे लोग ही सदा तीक कायम रहणगे। बाकी हर चीज जो अज मनुख की नजर के अंदर बेशकीमती लगती है, सब दियां सब चलियां जाणगियां। इसलिए ध्यान देने की लोड़ है कि असीं की करना है। असीं पक्का करना है कि साडियां जिंदगियां उसे दिशा दी वल जान जिस दिशा दी वल परमेश्वर लैके जाना चाहता है। साडा जीवन हमेशा उन राहां दी वल यात्रा करे जिस राहां दे उपर परमेश्वर सानू चलाउणा चाहता है। इसलिए जीवन च कोई भी ऐसी गल ना पाई जावे जो उसकी इच्छा, उसकी योजना दे, उसके वचन के विरुद्ध होवे। परमेश्वर उसको कट देवेगा, परमेश्वर उसको अलग कर देवेगा। परमेश्वर ने बहुत सह लिया, परमेश्वर ने बहुत कुछ सह लिया मनुख जाति के हथों, लेकिन हुण वो सहन नहीं करेगा। बहुत जल्दी उन्होंने करनियां दा हिसाब करन जा रहा है। अगर कुछ गल्लां साडे जीवन विच उस दे विरुद्ध हन तां सानू उन्हां गल्लां नूं अपने जीवन चों कड्ढना पवेगा, नहीं तां बहुत ज्यादा नुकसान दा सानू सामना करना पवेगा। अते सानू परमेश्वर दी वल मुड़ाउणा है। क्यों जो असीं अपनियां अखां दे नाल देख रहे हां, सब कुछ हो रहा है साडे सामने। परमेश्वर संसार में एक मैसेज देना चाहता है। असीं खुद पढ़ रहे हां बाइबल के अंदर कि ये सारियां गल्लां होणगियां, इसलिए साडे लई खुशी दी भी गल है कि परमेश्वर ने सानू चुन लिया, अलग कर लिया। परमेश्वर ने अपने वचन दे विच हज़ारां साल पहला ही दस दिता कि सारियां गल्लां होणगियां, घटनावां होणगियां। इसलिए बनदा यह है कि हुण असीं अपने जीवन नूं चेतावनी देनी शुरू कर दईए। हुण साडे कोल ज्यादा समा नहीं बचिया, असीं अपने जीवन दे नाल ज्यादा खिलवाड़ नहीं कर सकते, असीं अपनी जिंदगियां दे नाल ज्यादा देर खेड नहीं सकते। लोड़ है सानू अपने जीवन दे ध्यान करन दी अते सानू परमेश्वर दे नाल मिलाप अंदर आ जाना चाहिए है। अपने रिश्ते नू परमेश्वर दे नाल मजबूत कर लेना चाहिए है। अगर साडा रिश्ता उस दे नाल मजबूत ना होया, सही ना रहा, तां फिर साडा वर्तमान अते भविख पूरी तरह विनाश अंदर चला जाएगा। पर जेकर असी इन्हां दिनां दे अंदर अपना रिश्ता परमेश्वर दे नाल मजबूत कर लिया, इन्हां घटनावां नूं, इन्हां मौत नूं, इन्हां बवा नूं, इन्हां महामारियां नूं देख के परमेश्वर दे संपर्क विच आ गए, तां साडा वर्तमान अते भविख अते सदीपकताई अनंत काल परमेश्वर दे हत्थां दे विच सुरक्षित है। सानू फिर डरन दी लोड़ नहीं। साडे आउण वाले दिन परमेश्वर संभाल के रखेगा। मरण तो बाद भी साडा जीवन परमेश्वर संभाल के रखेगा। मरण तो बाद भी सानू मिलन वाली सदीपकताई परमेश्वर संभाल के रखेगा, जेकर असी इन्हां दिनां दे अंदर अपना रिश्ता अपने प्रेमी परमेश्वर दे नाल सही कर लेंदे हैं। रिश्ता सही कर लैन तो भाव अपने जीवन नूं सुधार कर लेना। ओ हर चीज, हर गल जो परमेश्वर दे वचन दे विरुद्ध है, उसनू अपने जीवन तो दूर कर लेना ही परमेश्वर दे नाल रिश्ता कायम करन नूं दिखाउंदा है। अगर तुसी परमेश्वर दे सही समर्पण दे विच आ गए तां तुसी हर हाल दे विच सुरक्षित हो। डरन दी लोड़ नहीं, चाहे इहदे नालों भी 1000 गुणा वध महामारियां क्यों ना आ जान। जदों असी उस दे नाल सही रिश्ते विच होवांगे तां असी हर हाल विच बचाए जावांगे। जिवें कि असी कूच दे विच इजराइलियां दे बारे पढ़दे हां, पढ़ांगे कूच 11 अध्याय उसदा 7 वचन। कूच 11 अध्याय उसदा 7 वचन। पर किसी इस्राएली दे विरोध मनुख को लेके डंगर ते एक कुत्ता भी नहीं भौंकेगा, ताकि तुसी जानो कि यहोवा मिस्रिया ते इस्राएलिया विच कितने पीन पे रखता है। प्यारे परमेश्वर दे लोगों, आज तो 4000 साल पहला जो इजराइलियां ने परमेश्वर दे नाल अपना रिश्ता सही कर लिया, वो अपने हरेक पाप ते बुरे राह तो मुड़ आए,
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਨਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਖੂਚ ਉਸਦੇ 11 ਅਧਿਆਏ ਦੇ 7 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, पर किसी इजराइली दे विरुद्ध मनुख तो लैके डंगर तक एक कुत्ता भी नहीं भौंकेगा, तां जो तुसी जानो कि यहोवा मिस्रियां अते इजराइलियां विच किवें पिन भेद करदा है। परमेश्वर दा वचन ये वायदा दे रहा है अपने लोगां नूं कि डरन दी लोड़ नहीं, मैं तुहाडी वल हां। तुहाडे विरुद्ध तां दूर, तुहाडे डंगरां दे, तुहाडे पशुआं दे विरुद्ध भी कोई कुत्ता तक नहीं भौंकेगा। डरन की लोड़ नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना रिश्ता परमेश्वर दे नाल सही कर लिया सी। क्योंकि परमेश्वर इजराइलियां नूं दस्सण जा रहा सी कि मैं तुहाडे अंदर ते मिस्रियां दे अंदर किवें पिन भेद प्रगट करन जा रहा हां, किवें छटनी करन जा रहा हां। परमेश्वर अपने लोगां ते संसार दे लोगां दे अंदर किवें पिन भेद करन जा रहा, ओही इतिहास परमेश्वर अज दोबारा दोहराउण जा रहा है। परमेश्वर इस दिन अते इस वर्तमान दे अंदर परमेश्वर अपने लोगां दे अंदर ते संसार दे लोगां दे अंदर भेद प्रगट करन जा रहा है। अंतर करन जा रहा है। कहण तो भाव कि असी एक अजिहे समय विच आ चुके हैं जिस समय दे अंदर परमेश्वर अपने लोगां नूं अते संसार दे लोगां नूं अलग करन दी तैयारी कर रहा है। इसलिए अगर असी इन्हां घटनावां नूं देख के, मौत नूं, महामारियां देख के भी परमेश्वर दे नाल अपना रिश्ता नहीं सही कर पाए, तां याद रखना परमेश्वर सानू भी की करेगा, उन्हां मिस्रियां दे समान साडी गिनती संसार दे लोगां दे नाल कर देवेगा। जिवें दूसरे नाश हो जाणगे, जिवें दूसरे अपने आत्मा ते प्राण नूं नाश कर लैणगे, उवें साडा ही नाश हो जावेगा। उन्होंने कदे भी याद या चेते नहीं किया जाएगा। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी दी याद मुबारक होवेगी, धर्मी सदा तीक कायम रहणगे। धर्मी लोग आसमान दे विच सितारियां ते चंद्रमा अते सूरज दे समान चमकणगे। धर्मियां दा कदी अंत नहीं होवेगा, उन्हां दा जीवन दा कदी भी अंत नहीं होवेगा। सदा तीक सदीपकताई दे लई, अनंत काल दे लई जीवित रहणगे। लोड़ है सानू हुण अपने जीवन ते ध्यान करन दी। असी अपनी सारियां संसार दीयां चिंतावां उसके उपर उलट दईए अते अपने आप नूं पूरी तरह समर्पण कर दईए, पूरी तरह परमेश्वर ते निर्भर हो जाइए। जिवें एक हवाई जहाज दे सफर करने वाला एक मुसाफिर अपने आप नूं जहाज दे चलाउण वाले पायलट ते की हुंदा है, निर्भर हुंदा है। जेड़ा एक यात्री जमीन तो हजारां फुट दी ऊंचाई ते उड़दा हुंदा है, जहाज दे अंदर सफर का है, उहदे मन ही मन च की हुंदा है, किते ना किते ख्याल हुंदा कि अगर जहाज क्रैश हो जावे या जहाज गलत दिशा वल चला जावे या जहाज के अंदर कोई गड़बड़ आ जावे तो मेरे जीवन का की बनेगा। इसलिए की कहता है, मन ही मन प्रभु पायलट नूं संभाल के रखना, उसको समझ देना, इसको सही रीति दे नाल ड्राइव करन दे, क्योंकि उस समय उसका जीवन उस पायलट दे हत्थां विच हुंदा है। इसे तरह असीं जो अपने संसार दे विच सफर कर रहे हाँ, साडा जीवन साडे परमेश्वर के हाथों में रह के परमेश्वर के ऊपर साडी पूरी निर्भरता होनी चाहिए है, ताकि सानू महसूस हो सके कि साडा परमेश्वर जिस भी दिशा दे वल लेके जाएगा, जिवें भी चलाएगा, साडा आत्मा प्राण, साडा वर्तमान, साडा भविष्य ते साडा अनंत काल, साडी सदीपकताई उसके हाथों दे विच सांभी रहेगी। इसलिए पहली गल यह है कि असी करना की है देखिया, अते परमेश्वर दे लिए की करना है, ते साडा परमेश्वर साडे जीवन तो की गल कर रहा है। दूसरी गल की है, इस तो पहला कि परमेश्वर साडी वल मुड़े, इस तो पहला कि परमेश्वर सानू खुद अपने क्रोध दे नाल मोड़े, समा रहंदियां परमेश्वर दी वल मुड़ाओ, चंगा रहेगा।
इस तो पहला कि परमेश्वर सानू साड़ियां जगहां तो मोड़ ले आवे, क्योंकि परमेश्वर अगर मोड़ के लेके आएगा तो वो साडे लिए खतरनाक हो जाएगा। जानकारी होंदिया होए, परमेश्वर की इच्छा नू समझदे होए जेकर असी ना मुड़े तां याद रखना परमेश्वर सानू अगर परमेश्वर साडी वल मुड़ाया तां या असी नाश हो जावांगे या फिर असी बचाए जावांगे। कुछ भी हो सकता है। इसकी लोड़ है सानू कि इस तो पहला कि परमेश्वर मुड़े, वो साडा न्याय करे, साडियां करनियां दे अनुसार सानू प्रतिफल देवे। इस तो पहला आओ असी परमेश्वर दी वल मुड़ जाइए, अपने पाप ते बदियां नू छड्डदे होए, अपने पाप ते बुराई नू, अपने बुरे जीवन नू लत मारदे होए परमेश्वर दी वल अपने सिरां नू झुकाउंदे होए आ जाइए ते कहिए हे परमेश्वर मैं हुण अपना रिश्ता तेरे नाल कायम करना चाहूं हाँ। मैं जान गया हाँ कि संसार सदाती कायम रहने वाला नहीं। मैं जान गया हाँ कि मौत एक दिन सारे संसार नू निगल लवेगी। मैं जान गया हाँ कि आने वाले दिनों के अंदर तरह तरह दी महामारियां इस समस्त संसार नू खोखला कर देणगियां। मैं जान गया हाँ कि जेड़ियां चीज़ां मेरी नजर अंदर सही सन वो सारियां दियां सारियां बेकार हो चुकियां हन। आज मेरा जोर, मेरी दौलत, मेरा वजूद किसे काम दा नहीं रहा है। परमेश्वर मैं अपना रिश्ता तेरे नाल जोड़ना चाहता हाँ। याद रखना इस तो पहला क्यों मुड़े सानू अपने परमेश्वर दी वल मुड़ाउणा है। असी इसलिए नहीं बुलाए गए कि दुनिया दे अंदर सानू उन्नति मिले, दुनिया दियां तमाम सानू बरकतां मिले। असी परमेश्वर दे चुने हुए लोग हाँ, उसदी संतान बन गए हाँ। साडा घर ते वसेरा है दुनिया नहीं। ये दुनिया दियां चीज़ां, दुनिया दियां बरकतां परमेश्वर दी संतान दे लायक ही नहीं हन, क्योंकि परमेश्वर दी संतान दियां जड़ियां बरकतां हन वो सदा तीक कायम रहने वालियां हन। वो थोड़े समय दियां बरकतां अपनी औलाद नू नहीं दिंदा। इसलिए ध्यान देने की लोड़ है ते परमेश्वर जी वल मुड़ाउण दी की है सानू जरूरत है। हुण असीं देखण जा रहे हां कि अगे की होवेगा। पहली गल असीं देखी कि इन्हां सारियां घटनावां नूं मद्देनजर रखते हुए असीं की करना है जिस दे नाल साडा वर्तमान अते आने वाले दिन अते अनंत काल संभालिया जाए। अते असीं की कर रहे हां ते परमेश्वर दे लिए की करना है। ते हुण असीं देखण जा रहे हां कि आने वाले दिनां अंदर होवेगा की, अगे की होवेगा। असी इस तो पहला की करना है। हो सकता आने वाले दिनों के अंदर महामारी टल जाए, सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा अते उस आने वाले समय के लिए सानू की करनी पवेगी, हुण तो ही तैयारी करनी पवेगी। जब असी लूका 18 अध्याय के 8 वचन में पढ़ते हाँ तां की लिखिया उस जगह ते पढ़ांगे। लूका 18 अध्याय उसका 8 वचन। मैं तुहानू आखदा हां जो उस शताबी उन्हां दा बदला ले देवेगा, पर जब मनुष्य दा पुत्र आवेगा तद की वो धरती उत्ते नीचा पावेगा। हाँ, इत्थे प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि आने वाले दिनों में की होवेगा उस गल नूं मद्देनजर रखदे होए गल कर रहा है। पर मैं आखदा हाँ जो वो शताबी उन्हां दा बदला ले देवेगा, पर जब मनुख दा पुत्र आवेगा तद की वो धरती उत्ते नीचा पावेगा। की होवेगा जे हाँ कि धरती ते विश्वास ही नहीं पाया जाएगा। महामारी तो बाद जो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तब बहुत सारे लोग जेड़े दुख दे समय जिन्होंने परमेश्वर दे नाल अपना रिश्ता जोड़िया सी, जिन्हां दे जीवन अंदर की होया सी, विश्वास आया सी, उन्होंने हुण की कर दिता, विश्वास नूं छड्ड दिता। क्योंकि मनुख सोचण लग पेगा हुण सारा कुछ ठीक हो गया, हुण मैनूं लोड़ नहीं है प्रार्थना करन दी, मैनूं लोड़ नहीं है परमेश्वर दे नाल अपने रिश्ते नूं कायम रखण दी। हुण मार्केटां खुल चुकियां हन, कारोबार चलण लग पे हन, हुण मैनूं लोड़ है दोबारा संसार दीयां चिंतावां दे अंदर अपना सिर देण दे लई। मैं फिर डुब जावांगा उन्हां चिंतावां दे अंदर, जिन्हां चिंतावां तो कड्ढण दे लई परमेश्वर संसार नूं मैसेज दे रहा है
सारा कुछ नॉर्मल हो जाने तो बाद मतलब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि लोग आखिरी दिनों च अपने विश्वास नूं छड्ड बैणगे। इसलिए साडा विश्वास ठंडा पै रहा है या नहीं, ये देखण दी साडी अपनी जिम्मेवारी है। असल में साडे खुद दा विश्वास है ही कि असी पहला इस ते ध्यान करांगे कि जिहड़ा साडा खुद दा विश्वास है, खुद दी नेचर है, वो है की आ। मान लो अगर मैं किसी खास जगह ते गया हाँ, किसी होटल दे अंदर गया हाँ, अते मैं तुहानू आन के दसदा कि वो होटल बड़ा अच्छा है, उठों दा खाना बड़ा स्वादला है, बड़ा वधिया है, पर तुसी उस जगह ते नहीं गए, तुसी केवल मेरी गल उत्ते विश्वास करके मन लिया कि हाँ ठीक है उस होटल बड़ा अच्छा है, उसका खाना बड़ा स्वादला है, उठों दे जो पदार्थ हैं बड़े अच्छे हैं। मतलब तुसी खुद ना गए, ना चेक किया, ना अजमा के देखिया, ना खा के देखिया, मेरी गल उत्ते विश्वास कर लिया, तो ये तुहाडा विश्वास नहीं है। कई बारी साडा विश्वास इस तरह का होता है कि असी की करते हाँ, ये गल मेरे फादर साहब ने मैनू दसी सी, ये गल साडे पास्टर जी ने दसी इसलिए सही आ, ये गल साडे ब्रदर जी ने दसी इस करके सही हाँ, साडा पास्टर जी इदा कह रहे इस करके सही हाँ। जिनी देर तक असी खुद उन्हां चीज़ों को प्रैक्टिकल नहीं करांगे, उन्नी देर तक सानू उन्हां चीज़ों ते विश्वास किवें आवेगा। पर याद रखना, जिहड़े लोग इदां दे हालात विच इदां दे लोगां ते विश्वास कर बैठणगे, फड़ी जिहड़े लोग इदां दी हालात विच उन्हां गल्लां ते उन्हां दे उपर विश्वास कर लैणगे, इदां दे लोग अपने विश्वास अते अपनी नेचर नूं खो देणगे, क्योंकि प्रभु अजिहा विश्वास नहीं चाहुंदा। परमेश्वर तुहाडे जीवन दा अपना विश्वास चाहुंदा है, दूजे दे द्वारा दस्सिया होया विश्वास नहीं। इदां दे लोग अपने विश्वास नूं ठंडा होया देखणगे। असीं खुद चख के वेखना है, खुद परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन च लागू करके देखना है। साडा पास्टर जी की कहते हैं वो नहीं देखना, वचन चो देखना है कि हाँ प्रभु मैनू आ कह रहा मैं इदां करना है। इसलिए जेडे लोग इदां दा विश्वास करनगे, शायद उन्हां दिनां दे अंदर उन्हां दा विश्वास जांदा रहेगा, क्योंकि आने वाले समय के अंदर क्लेश आने वाले हैं, सताओ आवेगा। अगर तुसी दूसरियां दा विश्वास लैके उन्हां सताओ ते क्लेशां दा सामना करोगे तां तुहाडा विश्वास जांदा रहेगा। जिवें जिवें दे सताओ आने वाले दिनां दे अंदर मसीहां दे उपर पैण वाले हैं। जेकर तुसी अपने पास्टर दे विश्वास दे नाल, पास्टर दी प्रार्थना दे विश्वास दे नाल, ब्रदर जी दी प्रार्थना दे विश्वास दे नाल उन्हां सतावां दा, उन्हां क्लेशां दा सामना करोगे तां तुसी ठंडे पै जाओगे अते तुहाडा विश्वास जांदा रहेगा। असी किसी दे विश्वास या किसी दे मोढे ते रख के बंदूक नहीं चला सकते। सानू खुद की करना पड़ेगा, अपने जीवन चो विश्वास पैदा करना पड़ेगा अते उस विश्वास के द्वारा अमल नू प्रगट करना पड़ेगा। उस विश्वास नू फल लगना जरूरी है, ताही असी आने वाले समय की तैयारी कर पावांगे, नहीं तो असी हार जावांगे। इसलिए आपां किसी ने भी, किसी भी मसीह ने दूजियां ते विश्वास ते निर्भर नहीं रहना, दूजियां दी प्रार्थनावां ते निर्भर नहीं रहना। अपनी प्रार्थना ते की करना है? निर्भर रहना है हर हालात दे विच, पर प्रभु ते विश्वास करके निर्भर रहना है। इदां दे लोग ही केवल जड़े लोग अपनी प्रार्थना दे द्वारा पाप तो फतह पा लैणगे, अपनी दुआवां दे द्वारा शैतान तो जय पा लैणगे, केवल इदां दे लोग ही सता ते क्लेश दे सामने खड़े रह पाउणगे। पर जड़े लोग दूजियां दी दुआवां ते निर्भर हो जाणगे, शायद इदां दे लोग अपने विश्वास नूं खो बैठन, क्योंकि सताव बड़ा भारी हो जा रहा है, क्लेश बड़ा भयानक हो जा रहा है। इसलिए समा रहंदे हुए वर्तमान समय दे विच असीं की करना है? तैयारी करनी है उन समय दे, आने वाले समय दे लिए। आपां किसी दे विश्वास ते खड़े नहीं रह सकते। इस तो पहला कि उस समय आ जावे, असीं की करना? अपने थर्ड पार्टी विश्वास नूं किहड़े पार्टी अंदर लैके आना? फर्स्ट पार्टी दे अंदर विश्वास लैके आना।
कई लोगों ने अपनी मोटरसाइकिल ते गड्डी की जिहड़ी इंश्योरेंस हुंदी है थर्ड पार्टी करवाई हुंदी है, पर जो कोई दुर्घटना हो जाती है तो उससे क्लेम नहीं कर पाते, सरकार को बेनिफिट नहीं मिलता। केवल की है पुलिस मुलाजमा तो बचने के लिए आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवा लेने हैं, पर की उत्ते सानू कोई बेनिफिट नहीं होता। अपना ही की करना पैंदा है, पैसे लगा के अपने बाइक दा, मोटरसाइकिल दा, गड्डी दा मुरम्मत करवानी पैंदी है। पर जेड़े लोगों के अंदर फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस हुंदी है वो लोग क्लेम कर सकते हैं, सरकार को की कर सकते हैं, दिते हुए टैक्स का वसूल कर सकते हैं। इसी तरह अपने थर्ड पार्टी विश्वास नू फर्स्ट पार्टी विश्वास के अंदर लैके आना है। पहले दर्जे का विश्वास आप अपने जीवन के अंदर लैके आना है। दूजे तीजे चौथे दर्जे का विश्वास किसी काम का नहीं, दूजियां दी प्रार्थना ते निर्भर रहने वाला विश्वास किसी काम का नहीं। असी अपने जीवन के अंदर खुद विश्वास पैदा करना है, वही सानू वेले सिर बचावेगा। अगर तुसी सही विश्वास अंदर आना चाहते हो तो सब तो पहला तुहानू प्रभु दे नाल गलबात करनी पवेगी। जिवें कि किसी ने अपने रिश्ते नू प्रभु दे नाल सही करना है तो सब तो पहला उसनू परमेश्वर दे नाल गलबात करनी पवेगी। अते गलबात असी अपने परमेश्वर दे नाल किवें कर सकते हां? प्रार्थना अते वचन दे नाल। साडा परमेश्वर साडे नाल अपने वचनां दे द्वारा गल करदा है। वो अपनी योजना, अपनी प्लानिंग वचन के आधार पर सानू समझाउंदा ते दसदा है। इसलिए इसी की करना है, परमेश्वर दे नाल अपना रिश्ता प्रार्थना ते वचन दे अध्ययन दे द्वारा मजबूत करना है, तां साडे जीवन च पहले दर्जे का विश्वास आएगा। इसलिए जदों तुसी प्रार्थना ते वचन के द्वारा विश्वास विच पक्के बन जाओगे तां जदों भी क्लेश मुसीबतां आउणगियां तां तुसी बड़ी आसानी दे नाल उन्हां दा सामना कर पाओगे। तुसी अपनी नेचा ते विश्वास नूं बिना खोए सता ते क्लेशां दे विचों दी जयवंत हो के निकलोगे, क्योंकि ये विश्वास तुहाडा अपना विश्वास नहीं, ये परमेश्वर तुहाडे अंदर पैदा कर देवेगा। पर असीं ये किद्दां करना है कि साडा प्रेम ठंडा ना पवे? किवें करना है? आने वाले दिनों के अंदर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। जदों महामारी खत्म हो जाएगी तो असीं की करना है? अपने विश्वास नूं हुण दे समय लई मजबूत करना है। बेशक नॉर्मल हो जावे, असीं अपने विश्वास नूं अपने जीवन चों जान नहीं देना। जदों सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो बहुत सारे मसीह लोग जिन्होंने इस समय दे विच प्रभु दे वल मुड़े होणगे, जिन्होंने तौबा कीती होवेगी, बपतिस्मा लिया होवेगा, दुख दे समय, क्लेश दे समय, फिर हौली हौली जदों नॉर्मल हो जाएगा तो की करेगा? परमेश्वर दे विरुद्ध अपनी गर्दन खड़ी करेगा हौली हौली कि नहीं हुण सारा कुछ नॉर्मल हो गया है, हुण कोई गल नहीं, हुण कुछ नहीं होना। वो अपने घमंड नूं हौली हौली परमेश्वर दे विरुद्ध प्रगट करना शुरू कर देवेगा कि नहीं हुण सारा कुछ पहले दे समान हो गया है, जबकि उस तो बाद इस महामारी तो भी भयानक अते खतरनाक महामारी आने वाली होवेगी। इस तो पहला कि मनुख अपनी गर्दन परमेश्वर दे विरुद्ध उठावे, परमेश्वर अजिहियां गर्दनां नूं पन देवेगा। परमेश्वर मनुख अगर अपने घमंड नूं परमेश्वर के विरुद्ध प्रगट करेगा तो परमेश्वर मनुख के घमंड नूं चकनाचूर कर देवेगा। इस तो पहला असी अपने जीवन के अंदर विश्वास पैदा करना है। अगर असी सही विश्वासी बन जावांगे, असी अपने विश्वास का ध्यान नहीं रख पावांगे तो आने वाले समय बहुत भयानक होने वाले हैं। आने वाले समय हो सकता सानू विश्वास तो सुटन दे लई कई तरह के लालच आउणगे, कई तरह के पाप अते बुराई करन दे लई सानू ऑफर मिल सकते हैं, कई तरह का व्यभिचार, बुरी संगति, बुरा रिश्ता जोड़न दे ऑफर मिल सकते हैं। अगर असी विश्वास अंदर मजबूत ना रहे तो असी भटक जावांगे ते अपने विश्वास नूं खो देवांगे। अगर असी हुण तैयारी ना कीती, इसलिए अपने विश्वास तो इस तो पहला कि असी अपने विश्वास तो हाथ धो बैठिए,
इन्ना संघर्ष इन्ना सारा कुछ करने के बावजूद भी असी अपनी सदीपकता ही खो दईए। आओ असी ध्यान करिए कि प्रभु मैनू विश्वास अंदर बना दे। मैं दूजियां ते विश्वास ते निर्भर नहीं रहना चाहता, केवल और केवल मेरे जीवन अंदर मेरे खुद का विश्वास, खुद की नेचा ही की करनी चाहिए, काम होनी चाहिए है। बेशक असी उन्होंने दिनों के अंदर बहुत कुछ करने वाले हो सकते हैं, प्रार्थना करने वाले, चर्च जाने वाले, बाइबल पढ़ने वाले, बंदगियां अटेंड करने वाले, पर की है आने वाले दिनों के अंदर बहुत सारे मसीहां दे लई पाप खुलेआम उन्होंने ऑफर देन जा रहा है। उस पाप तो ते बुराई तो बचन दे लई सानू इन्हां समयां दे अंदर ही तैयारी करनी पवेगी ताकि साडा विश्वास ठंडा ना पवे। तुहाडे अंदर एक्शन दी जगह पैशन होना चाहिए है, पर उन्होंने दिनों के अंदर बहुत सारे लोग जिन्हों का विश्वास ठंडा हो जाएगा, उन्होंने जीवन के अंदर एक्शन तो होगा पर पैशन मतलब परमेश्वर के कामों के लिए जनून नहीं होगा। बारी तौर पे एक्शन मतलब दिखावे के लिए चर्च जाने वाले, प्रेयर करने वाले आज भी अजिहे लोग हैं, पर अंदरूनी तौर पे प्रभु के कामों के लिए पैशन या जनून नहीं होगा। फॉर्मैलिटी दे लई, दिखावे दे लई, हाँ असी मसीह लोग हाँ चर्च जाते हाँ, पर अंदर साडा खोखला हो जाएगा। यह है आखिरी दिनों की निशानी। इसलिए साडा पैशन किवें कायम रहेगा, साडा परमेश्वर के प्रति जिहड़ा जनून है वो किवें कायम रहेगा। उस दे लई एक उदाहरण है कोलियां दी उदाहरण। जिहड़ा कोला कोलियां दी बलदे ते पकदे हुए कोलियां दी संगत विच लगातार रहेगा, उस दे अंदर वो जनून बनिया रहेगा। इसे तरह जिहड़े लोग इन्हां दिनां दे अंदर वचन दी सही संगति दे अंदर, पवित्र आत्मा दी संगति दे अंदर परमेश्वर दे नाल अपने रिश्ते नूं मजबूत करके रखणगे, केवल इदां दे लोगों दे जीवन दे अंदर ही वो परमेश्वर दे प्रति जनून अते विश्वास दा परिणाम पाया जाएगा। बहुत कुछ खत्म होने दी वल वध रहा है, इसलिए बहुत थोड़े समय के अंदर सारा कुछ जानदा रहने वाला है। ध्यान देने की लोड़ है सानू अपने जीवन के ऊपर। असी केवल थोड़े जे पाप की खुशी दे लई, थोड़े समय की पाप की खुशी दे लई असी अपनी सदीपकता ही नहीं खोनी चाहिए। एक थोड़े समय के स्वाद दे लई, थोड़े समय की शारीरिक खुशी दे लई असी अपने अनंत जीवन नूं नहीं खोना, लेकिन असीं खो नहीं सकते। उस दे लई सानू हुण ही तैयारी करन दी लोड़ है। इसलिए आने वाले दिनों के अंदर सानू की करन दी लोड़ है? अपने आप नूं मजबूत करन दी लोड़ है। परमेश्वर दियां दसियां हुई चीज़ों की जिम्मेवारी अपने ऊपर लैन की लोड़ है। पर बहुत सारे मसीह लोगों नूं परमेश्वर आने वाले दिनों के अंदर हजारां मौके देन जा रहा है परमेश्वर के राज नूं फैलाउण दे लई, परमेश्वर के वचन नूं फैलाउण दे लई। अज मसीहां ने की कीता, इक्को गीत पढ़िया है, शायद असीं कादे लई बुलाए गए हैं? चर्च जाण दे लई। पर परमेश्वर साडे जीवन तो चाह रहा है, अगर तुसी नजात पा लई है, उद्धार पा लिया है, सच्चाई नूं जान लिया है, तो मेरे राज नूं फैलाउण दे लई काम करो। लोगों नूं ज्यादा तो ज्यादा वध चढ़ के परमेश्वर दे राज दा हिस्सा बनाओ। सुसमाचार फैलाउण वाले मौके सानू मिलन जा रहे हैं। आने वाले दिनों के अंदर मसीह हो इसनूं समझण दी लोड़ है, क्योंकि इस महामारी के सारे संसार अंदर एक सवाल खड़ा कर देता है। इस कोरोना वायरस महामारी ने सारे देशों के विच रहने वाले लोगों के अंदर, समस्त संसार के अंदर ये सवाल खड़ा कर देता है कि मनुख ये समझे, मनुख इस गल ते विचार करे कि जीवन की है, जिंदगी की है, ये विज्ञान की है, संसार की है, अते परमेश्वर की है, अते मौत की, अते जीवन की है। परमेश्वर ने इस महामारी के द्वारा आज मनुख जाति दे एक सवाल खड़ा किया है, जिसते सानू ध्यान करने की लोड़ है। आज पूरे संसार का दुश्मन कोरोना वायरस महामारी, अते असीं भी उन्होंने की कर रहे हैं?
आज जिहड़ा दुश्मन है संसार का कोरोना वायरस महामारी है, पर साडा दुश्मन कौन है? पाप, शैतान। ये साडा दुश्मन है जिस तो असी फतह पाउणी है। आज मनुख नूं समझण दी लोड़ है कि तुहाडा दुश्मन है महामारी नहीं, तुहाडा दुश्मन पाप है, जिहड़ा इस महामारी तो भी 1000 गुना वध के खतरनाक अते भयानक है। ये महामारी तुहानू मौत दे सकती है, पर पाप तुहानू दूजी मौत जो सदा दे रही नरक विच है ओ देंदा है। इसलिए असी अपने जीवन ते ध्यान करना है कि इस महामारी तो भी सब तो ज्यादा खतरनाक की है, वो है मनुख जाति दा सब तो वड्डा दुश्मन पाप। पर साडा यीशु उस तो सानू बचा सकता है। इसलिए की करना है, इस महामारी तो सबक सीखना है अते अपने जीवना ते ध्यान करना है कि साडा परमेश्वर की करन जा रहा है। साडे जीवन तो कुछ मंग कर रहा है, ये सारा कुछ की करन जा रहा है, बहुत जल्दी अंत दी वल दा एंड दी वल वधन जा रहा है। असी आखिरी वचन नूं पढ़ के खत्म करांगे। पहला पतरस 4 अध्याय उसका 7 वचन। पहला पतरस 4 अध्याय उसका 7 वचन, आखिरी वचन पढ़ के खत्म करांगे। लिखा है, पर सबना वस्तां दा अंत नेड़े है, इस कारण तुसी सुरत वाले होवो ते प्रार्थना दे लई सुचेत रहो। सबना गल्लां ते सबना चीज़ां दा अंत नेड़े है। इसलिए 3 चीज़ां असीं समझियां कि असीं कर हो संसार दे विच हो की रहा है साडे आल दुआले, अते असीं की करना है अते की आउण वाले दिनां विच की होवेगा, जिस दे द्वारा असी साडा जिस दे द्वारा वर्तमान अते भविख अते अनंत काल कहण तो भाव कि सदा दा जीवन किवें संभालिया रहेगा। अपने परमेश्वर दे नाल रिश्ता कायम करन दे नाल, उस दे नाल संगति कर लैण दे नाल, अपने जीवन दे अंदर विश्वास, अपना खुद दा विश्वास पैदा कर लैण दे नाल, अते लास्ट विच आउण वाले दिनां दी तैयारी कर लैण दे नाल। जदों असीं आउण वाले दिनां दे लई तैयारी कर लवांगे, बेशक इन्हां सारियां गल्लां दा अंत हो जावेगा, मनुख दे हत्थां दीयां कारागरियां दा अंत हो जावेगा। पर जदों असीं धरती ते रह के अपने जीवन अते विश्वास दी यात्रा नूं खत्म करके अपने परमेश्वर दे वल जावांगे, तद साडा स्वर्ग दे अंदर बड़ा सम्मान दे नाल स्वागत होवेगा। बड़े आदर दे नाल ओ लोग जिन्हां ने कलेशां ते सताओ दे अंदर अपने विश्वास नूं संभाल के रखिया, जिहे लोग परमेश्वर दे कोलों आदर ते महिमा ते मान दा अते सदीपक जीवन दा मुकुट प्राप्त करनगे। उस मुकुट नूं प्राप्त करन दे लई, स्वर्ग दे विच आदर नूं प्राप्त करन दे लई, परमेश्वर दे वल्लों सम्मान नूं प्राप्त करन दे लई सानूं लोड़ है कि असीं इस ते धरती ते रह के तैयारी करिए। आओ असीं अपने घुटनियां ते आइए, हाँ असीं अपने घुटनियां ते आइए ते ध्यान करिए अपने जीवनां दे वल कि हे प्रभु मैनू दस मैं की करा, असीं की करिए अते अगे की होवेगा मैं नहीं जानदा। हे प्रभु मेरे ते तरस था, मेरा जिहड़ा रिश्ता तेरे नाल टुटा होया है उसनू दोबारा जोड़न दे लई मेरी मदद कर दे। संसार विच जिन्नियां भी घटनावां हो रही हन, केवल और केवल मैनू समझा रही हन कि अंत नेड़े है। सारियां गल्लां सारियां चीज़ां दा अंत होने वाला है अते परमेश्वर मैं जानदा हाँ कि तू लगातार मनुख जाति नूं चेतावनी दे रहा है। प्रभु कोई बचे या ना बचे, पर मेरे जीवन के अंदर सुधार आ जाए। हे परमेश्वर मैं नहीं चाहता कि मेरा नाश हो जावे, मैं चाहता हाँ कि जिस योजना दे लई तू दुनिया बनाई, जिस इच्छा दे नाल तू दुनिया बनाई, मैं तेरी इच्छा नूं जान लवां अते उस दे अनुसार जीवन गुजारा। इसलिए की करना है, एक सही पश्चाताप, एक सही पश्चाताप करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। आओ सी प्रार्थना करिए, आप अपने जीवन को ध्यान विच रखते हुए
अपने जीवन में जो पाई जाने वाली बुराई है वो हर गल जी परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है उसको अपने जीवन चो कड्ढण का फैसला लईए ताकि साडा हुण दा समा ते आउण वाला समा ते इस तो बाद दा जो समा है वो परमेश्वर के हत्थां दे विच संभालिया जा सके।